Welcome back, students. Let's start an exciting exercise on Chapter 7, Conservation of Plants and Animals, and that too on your favorite portal, StudyPure. So, children, I hope after watching the video on the chapter explanation, you are ready to attempt this exercise, which is not only going to recap in the concepts but also help you in your examination. So, without wasting time, let's begin. सबसे पहले we will start with short answer questions. So हमारा पहला question है name the major threat to the survival of an organism. तो जब हम chapter 7 की बात कर रहे हैं तो हमें उनके survival का threat chapter के basis पे सोचना है, ना कि दूसरे factors जो survival की threat हो सकते हैं. So in terms of your chapter, what is that first thing जो किसी भी organism के लिए उसके अपने area का सर्वाइवल थ्रेट बन जाता है एंड द कॉमन आंसर टू दैट इज डिफॉरेस्टेशन. आई होप यू एग्री बिकॉज डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. तो अगर हम फ्लोरा फौना की बात करते हैं, डाइवर्स फॉर्म्स की बात करते हैं, फॉरेस्ट उनका अपना नेचुरल हैबिटेट है. तो जब हम पेड़ काटेंगे तो क्या होगा, उनका सर्वाइवल इसलिए मुश्किल हो जाएगा बिकॉज देयर होम्स हैव बीन टेकन अवे. Okay, now let's take question number 2. What is the sanctuary? So क्या होती है एक sanctuary? जब इस चैप्टर को रिकॉल करते हो तो किसी पोर्शन में आपने पढ़ा था जहां पे हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात कर रहे थे. तो नेचर में इन एनिमल्स और इन ऑर्गेनिजम्स को सेफर रखने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से प्रोटोकॉल्स लिए थे, सैंचुरीज बिल्डअप करना उसमें से एक है. So let's read what is a sanctuary. It's an area where animals are protected from any disturbance to them and their habitat. That is what makes a sanctuary. So this is an attempt by the government to protect the biodiversity. So let's take the next question now. Define species very quickly because species हमने initially पढ़ा था. Species is a group of population which are capable of interbreeding, right? तो एक बायोडाइवर्सिटी में, एक बायोस्फीयर रिजर्व में, एक फॉरेस्ट में अगर हम देखें, एक इकोसिस्टम में हम देखें तो हमारे पास स्पीशीज अलग अलग क्यों होती हैं? क्योंकि दे आर बिलोंगिंग, दे आर द सेम पॉपुलेशन विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड क्रिएटिंग देयर ओन टाइप्स, राइट? सो दैट इज हाउ यू डिफाइन अ स्पीशी, जहां से हमारे इस चैप्टर की शुरुआत होती है. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. Write the names of places made to conserve biodiversity. So again recall. तो इसमें आप वो सारे सेटअप्स जोड़ सकते हो जो कि गवर्नमेंट ने सेट किए हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, जिसका एक एग्जांपल हमने पढ़ा था, दैट वाज अ वाइल्ड लाइफ सैंचुरी. सो इन टर्म्स ऑफ द मैप ऑफ इंडिया, इफ यू रिमेंबर जब हमने चैप्टर स्टडी करी थी तो मैंने बहुत सारी स्लाइड्स में आपको दिखाया था कि इंडिया के कौन कौन से regions या states में ये पाए जाते हैं. So out of them we have just taken 3 names but you should know more of them. दुधवा नेशनल पार्क, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कुछ एग्जांपल्स हैं but the list is very long and for your information you should know most of them and especially the regions where they are found, right? Because it's very important. Let's take the next question. What do you mean by wildlife? बहुत ही सिंपल सी बात पूछी हुई है. What is wildlife? थोड़ा सा आपको टेक्निकल होना पड़ेगा because of your grade, class 8 and the way you put up the answer, because wildlife क्या होती है वो तो हम एक छोटे बच्चे से भी पूछ सकते हैं. But you have to answer this question up to your grade and by stating wildlife means all organisms that grow or live wild in an area without being introduced by humans or introduced by humans. की मतलब वो लाइफ सिर्फ उनकी लाइफ है. There is no intervening done by human beings and that's why हम उन practices को भी discourage करते हैं जो वाइल्ड लाइफ में hunting, killing of animals for the greeds of human beings is done. So basically when we are talking about wildlife, it's a normal term which is explaining you the life of wild animals. Okay? Next question is write 2 natural causes of deforestation. बहुत बार deforestation पे
डिस्कशन हो चुका है, कम्युनिकेशन हुआ है. सो अब जब हम आपसे नेचुरल कॉजेज पूछ रहे हैं डिफॉरेस्टेशन के, ये तो बहुत ही क्विकली आंसर कर देना चाहिए आपको. द आंसर इज सिवियर ड्रॉट्स एंड फॉरेस्ट फायर्स. ये भी ध्यान रख रहा है कि वो नेचुरल कॉजेज होने चाहिए, राइट, नॉट मैन मेड. तो नेचुरल कॉजेज, ड्रॉट्स इज नॉट इन आवर कंट्रोल. जब सूखा पड़ता है तो वो नेचर का कॉल है. एंड जहां पे बात फॉरेस्ट फायर्स की होती है वहां पे भी देयर इज नो ह्यूमन इंटरवीनिंग, राइट. तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो नेचुरल डिफॉरेस्टेशन कॉज करते हैं. गिव एग्जांपल्स ऑफ फ्लोरा. वेरी सिंपल, जस्ट ब्रशिंग अप योर नॉलेज. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्लोरा? जितने भी आपको एग्जांपल्स आते हैं आप लिख सकते हो. फ्यू ऑफ देम आर टीक, सॉल, मैंगो, जामुन, अर्जुन, एक्सेट्रा. ओके, जितनी भी आपको वेराइटीज पता है आप सब लिख सकते हो. बट दिस इज बेसिकली टेस्टिंग योर नॉलेज स्किल्स अबाउट फ्लोरा, कि हम फ्लोरा किसे बोलते हैं. Similarly goes the next question where you have to give examples of fauna types. So flora तो आपको समझ आ गया, it's covering all the plantation, and when I talk about fauna, it's covering majority of animals like elephants, tigers, wild bear, etc, etc. Okay, so nothing sort of very difficult to understand. It's just आपको flora fauna का meaning पता होना चाहिए यहाँ पे. Now let's take the next question. Name two national parks. Again, as I said, national parks हो, wildlife sanctuaries हो, आपको सबकी knowledge होनी चाहिए. हाँ, कोई भी आपसे पेपर मैप में भरवाएगा नहीं, ना भरने के लिए बोलेगा. That will be done in a social science exam, but for your knowledge, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी states में कौन कौन से national parks या wildlife sanctuaries हैं, and in interest to this chapter. So we have taken two examples, Corbett National Park and Gir National Park. All of us know about that, right? बहुत बार हम SST में पढ़ चुके हैं इस बारे में. Name two endemic fauna. This is the next question. तो अब यहाँ पे आपको ऐसी वेराइटीज बतानी है ऑर्गेनिजम्स की, स्पीशीज की, जो कि एक एरिया से रिस्ट्रिक्टेड है, यानी वो हर स्टेट में इजीली आपको अवेलेबल नहीं होती. दे आर फाउंड ओनली इन वन पर्टिकुलर एरिया. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? It's giant squirrel and bison. And children, again I'm repeating, it's not restricted to only these two species. You can also write down the other forms of endemic fauna because there are many more examples associated with it. Alright? So अगर आप कोई और भी लिखते हो जो endemic fauna है वो गलत नहीं होगा. Next, let's see the some forest products. Very simple question. ये तो आपको सिर्फ देखना है कि आप फॉरेस्ट के बारे में कितना समझ पाए हैं, तो ये तो आंखें बंद करके आंसर करने वाला क्वेश्चन है. सो फॉरेस्ट के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज करते हो, अगर आप उसको भी लिख दोगे तो यू विल बी परफेक्टली आंसरिंग इट. पेपर, वुड, टिम्बर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, रबर, एक्सेट्रा, फ्लावर्स. मैंने बहुत सारी चीजें मेंशन नहीं की. एज यू नो, हेड टू टो हम एक प्लांट की भी बात करें, ट्री की भी बात करें, हर चीज हम उसकी यूज करते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, राइट? So you have to name some forest products. That's it. Let's move to the other question. What do you mean by desertification? अब नाम बहुत कुछ बता रहा है कि वो क्या जानना चाहते हैं. What is this process of desertification? कोई भी जगह को हम ये कब कहेंगे, you know, when, what are the things which are shown in that particular area? तो obviously as the name suggests उसका desert से कुछ लेना देना है. So the conversion of fertile land into deserts is called desertification. ऐसी स्टेज पे वो लैंड पहुंच गया है कि वो इतना फर्टाइल था, and due to some climatic changes or maybe some of the causes which are made by human beings is leading to that fertile land into a desert conversion, right? So this process is called desertification. Okay, and if you remember or you are able to recall the video which you have studied with me, you will remind yourself of desertification with that picture in your mind कि किस तरह से वो पूरा fertile land एक desert में convert हो गया था. Now let's take the next question. What is biodiversity? जिसके बारे में हम बार बार बोल रहे हैं. Again मैं इस term को दो parts में break करूंगी, bio और diversity. Bio means life and diversity is the various forms. So in totality, it is the various forms of life. So the diversity of plant and animal life in a particular habitat is called its biodiversity.
राइट? और हमने कितनी फॉर्म्स फ्लोरा की, फौना की मेंशन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं. So that is all forming biodiversity. Let's take the next question. Define biosphere. Again, I would suggest whenever you have such words, break them into two parts. Now, one is life and one is describing the part of the earth which living organism exists or which support biological diversity that makes it a biosphere. And हम सब भी उसी biosphere का एक part हैं. Yes? Let's take the next question. Which gas is predominantly responsible for global warming? ये तो रट जाना चाहिए अब तक. सेकेंड्स भी नहीं लगने चाहिए बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग एक एजेंडा है जो हम ऑलमोस्ट हर पार्ट में डिस्कस करते हैं. So, what is the answer, children? The answer is carbon dioxide. I hope you all agree with me. Let's move to the next question. What are endangered species? अब आता है species की टेस्टिंग. किस किस टाइप की होती है. एंडेमिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं. अब आपको मेरे साथ पढ़ना है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती हैं. नाम से ही बहुत कुछ समझ आ रहा है. डेंजर्ड. सो जो भी स्पीशीज जिनको खतरा है, endangered species are those which are facing the danger of extinction. हमें खतरा है कि ये एक्सटेंट हो जाएंगी अगर हम ये बच्ची कुची लास्ट वेराइटीज का ध्यान नहीं रखेंगे. रीजन कुछ भी हो सकता है. वो सारे रीजन हमने चैप्टर में डिस्कस किए थे. सो दे आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड नो दिस. What are extinct species is the next question. तो जिस तरह से अब आपको endangered पता चल गया, एक्सटिंक्शन का मतलब होता है गायब होना, राइट? तो जब हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज की बात करते हैं, हम इसी लॉजिक को यूज करके एक्सटिंक्ट स्पीशीज को डिफाइन करते हैं. सो लेट्स सी. एक्सटिंक्ट स्पीशीज आर दोज व्हिच नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑन अर्थ. वैनिश हो चुकी है ये वेराइटीज, राइट? तो ये हमारी एक्सटिंक्ट स्पीशीज होती हैं. अब आप देखो, नेम द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. आपको ये आंसर पता होना चाहिए कि which was the first reserve forest made in India. बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे, बट ऑब्वियसली फर्स्ट वाला हमेशा माइंड में रहना चाहिए. कुछ भी ऐसा काम जो सबसे पहले किया जाता है वो हमेशा कहीं ना कहीं लिखा जाता है. सो फर्स्ट फॉरेस्ट रिजर्व ऑफ इंडिया था सतपुरा नेशनल पार्क. प्लीज राइट इट डाउन. इट वॉज द फर्स्ट रिजर्वर फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज बिल्डिंग. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Name products obtained from animals for which they are hunted. Very simple. बहुत सारी चीजें तो हम कंज्यूम ही करते हैं उसमें से, राइट? आप क्लोथिंग की बात तो बाद में करोगे, दो आई हैव गिवन यू अ हिंट. नाउ लेट्स जस्ट क्विकली रीड देम. स्किन, you all know. Fur, horn, eggs, flesh. It can be eggs. It can be many other things which the animals are providing us. And yes, plants पे तो हम totally dependent हैं. कुछ हद तक हम एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट होते हैं. लेट्स टेक द नेक्स्ट पार्ट. राइट द नेम्स ऑफ सम एक्सटिंक्ट एनिमल्स. अब जैसा हमने एक्सटिंक्ट स्पीशीज या एनिमल्स के बारे में समझ लिया है कि वो गायब हो चुके हैं, तो अब आपको एग्जाम्पल्स देने हैं ये बताते हुए कि कौन कौन से एक्सटिंक्ट एनिमल्स आपको मालूम है जो नहीं दिखते हैं. वन इज डोडो, वन इज डायनासोर्स एंड वन इज मैमथ. डायनासोर्स पे आपने कितनी मूवीज देखी होंगी, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं वैसी स्पीशीज अब एग्जिस्ट ही नहीं करती. एंड दैट इज व्हाट दोज मूवीज आर ट्राइंग टू टेल यू कि किस तरह से उनका एक्सटिंक्शन हुआ है, राइट? नेक्स्ट इज व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड. सो दिस वाज एन एक्ट, लीगल एक्शन व्हिच वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट आ गया था जहां पे बहुत जरूरी था जो भी टाइगर्स की हमारे पास स्पीशीज बची हैं, जो वो मैंने बताया था ना एंडेंजर्ड टर्म, कि अब हमें खतरा है कि कहीं ये भी एक्सटेंट ना हो जाए. सो टाइगर्स के लिए भी ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिसमें लीगल एक्शन लिया गया था इनकी वेराइटीज को सेव करने के लिए. सो व्हेन वाज दिस project launched? It was launched on 1st April 1973. Right? Please make a note of this. Next is, what is the plantation of new plants called? So what do you call the new plantations? थोड़ा सा सोचो and I will reveal the answer. Of course, the plantations, new plantations which are
done from our end is called reforestation, and that is one of the important parameters to save, conserve biodiversity, क्योंकि reforestation ही उसका घर होता है, habitat provide करता है उनको, और उनको बहुत safe और secure लगता है अपने ही habitat में survive करने से. So very simple question. Now let's take next question. What is a zoo? अब जितने भी हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं उनमें पार्क्स आ रहे हैं, जूज आ रहे हैं, सेंचुरीज आ रही हैं, या जो भी चीजें हैं पेड़ पौधों से रिलेटेड या जंगलों से रिलेटेड हो रही है, क्योंकि ये अलग अलग अटेम्प्ट्स हैं जहां पे हमें लगता है हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं. Zoo is one of them. So how will you say and define what is a zoo? It is a place where animals receive protection. That's why you call it a जू. बहुत लोग आप में से जू विजिट भी कर चुके होंगे और आपने वहां देखा है कि किस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स जो है वहां पे पाए जाते हैं, प्रोटेक्ट किए जाते हैं, एंड मेकिंग श्योर ह्यूमंस आर सेव्ड एज वेल, और आप उनको विजिट कर सकते हो. सो नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफाइन एंडेमिक स्पीशीज, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूं, बट आप मेरे साथ इस डेफिनेशन को रिपीट करेंगे एंड लर्न करेंगे. सो द स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स which are found exclusively in a particular area are called endemic species. Okay, I hope you have marked up and learned. Question number, explain the term ecosystem. Now, what is an ecosystem? How will you define ecosystem? Let's say that together. How will we define the ecosystem? It is a system formed by the interaction of a community of organisms with their physical environment. तभी वहां पे सारी lives possible हैं. Biodiversity जो है वहां पे diverse forms of जितनी lives हैं वो सारी एक दूसरे के साथ coexist कर रही हैं because of the interaction. So that makes it a ecosystem. Let's move to the next question. What can be done to retain our green wealth for generations? बहुत thoughtful question है and simple to answer है, क्योंकि इतने टाइम में हमें प्रॉब्लम समझ आ गई है, उनके रूट कॉजेस समझ आ गए हैं और एक्शन लेना इजी हो जाता है. So let's now talk about the ways to retain them. We have to retain our green wealth for generations. First of all, planting of more trees is the only option. That is called reforestation. And if you remember our discussion during the chapter discussion, हमने ये बात जाहिर की थी कि आजकल ट्रेंड इसीलिए बनाया जाता है, आप सेलिब्रेट करते हो वन महोत्सव, ताकि आपके पास एक टाइम इंटरवल हो जहां आप सब मिलके फोकस सिर्फ इसी पॉइंट पे करो कि सब लोग ट्रीज प्लांट कर रहे हैं, एटलीस्ट फॉर सम टाइम पीरियड. एंड अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो डिस्कस्ड आपके स्पेशल ओकेजन्स पे, आपकी लाइफ में कोई भी अच्छा दिन है, यू शुड एटलीस्ट डू दिस जेनरस action by planting a tree or gifting a tree to someone or a sapling to someone so that they can take care of that and हमारी generations को benefit मिल सके. Let's take another question. Define migratory birds. Migratory birds के बारे में हमने पढ़ा था. क्या होते हैं? जो climatic conditions ना सूट करने की वजह से अपना habitat temporarily change कर लेते हैं, और जब वहां पे कंडीशंस नॉर्मल हो जाती हैं, दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल हैबिटेट, एंड यस ऑफ कोर्स फॉर देयर बेसिक नीड्स. सो व्हाट इज दैट? द बर्ड्स व्हिच कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अनदर लैंड फॉर फूड एंड ब्रीडिंग आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स. बेसिक नीड्स फूड है एंड ब्रीडिंग है. सो दैट इज वाई जब वो अनकंफर्टेबल फील करती हैं एक जगह पे, दे मूव टू अ डिफरेंट लैंड जहां पे वो टेम्परेरीली विजिट करती हैं, एंड जब उन्हें पता चल जाता है कि वहां पे कंडीशंस नॉर्मल हो गई हैं, दे कम बैक. एंड हाउ वंडरफुल इज दैट, बिकॉज ना उनके पास फोन्स हैं ये पूछने के लिए, ना उनके पास कोई गूगल मैप्स हैं एरिया को ट्रैक करने के लिए, बट दिस इज द वंडर ऑफ नेचर. लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 29. लिस्ट द नेम्स ऑफ सम माइग्रेटरी बर्ड्स. आप इस क्वेश्चन का जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप पुराने क्वेश्चन से भी रिलेट कर सकते हो, और जब आप डिफाइन करते हो यू शुड मेक श्योर आप एग्जाम्पल जरूर दे रहे हो. सो लेट्स नाउ लिस्ट द नेम्स ऑफ सम माइग्रेटरी बर्ड्स. साइबेरियन क्रेन, बार हेडेड गूज, आर्टिक टर्न एंड सुखरा. नाउ
you can pen down them, at least 2-3 examples आपको पता होने चाहिए. I won't say कि सारे याद करो, but for your knowledge, keep in your mind, at least remember 2 or 3 for the paper point of view. Let's move to the next question. Now define red data book. If you recall the chapter understanding, आपको वो red लाल किताब याद आ जाएगी. And why was that made? It was very important to keep a record of this diverse forms of flora and fauna. नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कौन सी endangered form है, कौन सी endemic form है, कौन सी vulnerable form है, threatened species है. इन सब का पता लगाने के लिए हमारे पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि जब हम पुराने और नए रिकॉर्ड्स को कंपेयर करें, हमें एक्चुअली में पता चल सके कि कौन सी स्पीशीज किस कैटेगरी में फॉल कर रही है. एंड नेसेसरीली एक्शन कैन बी टेकन देन. नाउ लेट्स डिफाइन इट टुगेदर. A book that keeps records of all the endangered plants and animal species is called a red data book. So it's very important to keep this record safely. And this is majorly giving help to people who are researchers, to people who are visiting and studying these different types of national parks and forests. Mention the causes of deforestation. Crunch है, बिल्कुल simple है और आपसे ही शुरुआत होगी. Let's see आप कितना टाली कर पाते हैं मेरे साथ causes of deforestation को. First point is forest fires. I think you all agree. Building houses, factories, which causes urbanization. Severe droughts, again, it's something which is very natural. Using wood for homes and offices, because for that wood is coming from eventually these forests, and you are cutting down trees to get that wood. Human procuring land for cultivation. Again, it connects with urbanization, because चाहे cultivation हो, चाहे कुछ build up करना हो, land चाहिए. Land तभी आएगा जब आप फॉरेस्ट, क्योंकि हमारे हिसाब से वही एक फ्री लैंड है. हम ये भूल जाते हैं कि वो फ्री नहीं है. दैट इज अ हैबिटेट टू सो मेनी फ्लोरा एंड फौना. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू फ्रीक्वेंट फ्लड्स एंड ड्रॉट्स? तो अब फ्लड्स भी पता है आपको और ड्रॉट्स भी पता है, दोनों ऑपोजिट हैं. तो डिफॉरेस्टेशन का दोनों पे क्या इम्पैक्ट है? क्यों हम ये बोल रहे हैं कि it is deforestation only which is leading to frequent floods and droughts? Now let's discuss this. Deforestation results in decreased water holding capacity of soil. आप मानते हैं इस बात को? This reduces the infiltration of water into the ground, which causes floods. Cutting more trees will result in less rainfall, because the process of making water vapor will slow down and lead to droughts. ये सारी चीजें सिंक में है. पेड़ कट गए, इसका मतलब सॉइल लूज हो गई, तो उस पे फर्क कहाँ आएगा? जहां हमारा इन्फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है. पानी पोरोसिटी की वजह से जो पानी है वो नीचे ग्राउंड में नहीं पहुंच पाएगा, एंड दैट विल लीड टू फ्लड्स. ये एक केस होता है. और दूसरा केस, जब आप बहुत ज्यादा ट्रीज को कट कर रहे हो, आपको पता है रेन का जो आना है वो अपने आप कम हो जाएगा. और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज एज वी से फॉर रेन वाटर वेपर नीड्स टू इवेपोरेट. वो कहां से आएगा? सो दैट इज व्हाई डिफॉरेस्टेशन दोनों केसेस ला सकता है. इट कैन बी ड्रॉट्स ऑल्सो एंड इट कैन बी फ्लड्स ऑल्सो. लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. Explain how deforestation is associated with global warming. Again, deforestation का global warming से relation लेना है. अब हम जानते हैं global warming में क्या होता है. Excessive temperature बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स बढ़ जाते हैं. अब ध्यान से सोचो, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि जो पेड़ उसको कंज्यूम कर रहे हैं वो तो है ही नहीं, वो तो हमने काट दिए, तो इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है. लेट्स रिवील एंड रीड. Plants absorb carbon dioxide from the atmosphere for photosynthesis. When forests are cut down, much of that stored carbon is released into the atmosphere as carbon dioxide. Carbon dioxide in its atmosphere trap heat rays reflected by the earth, which results in global warming. So I hope you have understood this answer well. Let's move to next question. हाउ कैन वी प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. जितनी भी नॉलेज अभी आपको चैप्टर से मिली है वाइल्ड लाइफ के बारे में, स्टेप्स के बारे में, जो मेजर्स हम लेते हैं उसको सेव करने के लिए,
आप उसको अगर एक साथ डाल दोगे, you will get the answer to this question. So let's see how to put the answer. Wildlife plays a significant role in maintaining a balance in the environment. They can be protected by establishing secured and protected area. Cutting of trees, hunting, poaching are strictly banned there. Many of these areas are national parks, wildlife sanctuaries. तो जहाँ पे हमें प्रोटेक्शन की बात आती है, ये सारी जगहें बनाई इसीलिए गई हैं जहाँ पे आपने लीगल लॉज लगाए हैं और पूरे प्रॉपर मेंटेनेंस रूल्स डिसिप्लिन के साथ इन एरियाज का ध्यान रखा जाता है. आपने फॉरेस्ट ऑफिसर्स के बारे में सुना होगा, आपने बहुत सारे ऐसे जूलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा होगा जो इन एरियाज से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं बिकॉज दैट इज देयर लव एंड देयर पैशन फॉर दीज एनिमल्स. एंड ऐसे एरियाज होने बहुत जरूरी हैं इन पे फर्दर स्टडी करने के लिए. यू कांट रन आफ्टर अ लायन और अ टाइगर टू नो अबाउट इट, टू स्टडी अबाउट इट. Yes or no? So this is the way we protect wildlife. Why is the conservation of biodiversity important? ये पूरे चैप्टर का क्रक्स है कि क्यों हम इतना पढ़ रहे हैं और इतना बार बार इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं. किस लिए बायोडाइवर्सिटी को बचाना बहुत जरूरी है, किस लिए जरूरी है? अगर हम वो फॉर्म्स जो हमारे लिए एक बून है हर एंगल से, हम उन सब कुछ उन्हीं से ले रहे हैं और हर छोटी से छोटा, चाहे वो एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है जो इस अर्थ पे प्रेजेंट है, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ा होगा, राइट? तो हमारा भी फर्ज बनता है, अगर हम इस चीज का फायदा पूरी लाइफ जनरेशन तक चाहते हैं, वी शुड मेक श्योर कि हम उसका ख्याल रखें. और वो कैसे? इट बूस्ट टूरिज्म, नंबर वन. सब कमा रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट भी कमाती है बिकॉज स्पेशल अट्रैक्शंस होते हैं, जैसे ये नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. कई बार जैसे आपने कुछ स्पीशीज के बारे में पढ़ा है जो कुछ एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही पाए जाते हैं, तो जो लोग इन चीजों को के बहुत शौकीन होते हैं, वो स्पेशली उस एनिमल से मिलने के लिए या उसको देखने के लिए दे विल ट्रैवल टू दैट प्लेस, राइट? सो इट्स बूस्टिंग द टूरिज्म. It maintains the fertility of soil because you are providing them that natural habitat by planting trees and making it more greener. It helps in maintaining the ecological balance. Of course, सारा साइकिल ठीक हो जाएगा क्योंकि जब पेड़ सारे ढंग से लग जाएंगे, ऐसे एरियाज एनहांस्ड होंगे, तो आपका जो नेचुरल साइकिल है, जो नेचर का अपना इकोलॉजिकल बैलेंस है, वो हमेशा मेंटेन रहेगा. It helps in maintaining the weather by regulating climatic changes, rainfalls, etc., which is related to the ecological balance also. So, जो हमारा साइकिल है रेनफॉल का, वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा. जहां हमने फ्लड्स की बात करी थी, ड्रॉट्स की बात करी थी, वो अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे एंड हमें ज्यादा खतरा महसूस नहीं होगा अगर हम इन सब बायोडाइवर्सिटीज को कंजर्व रखें. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज वन महोत्सव? दोबारा से इसको ब्रेक करो, वन और महोत्सव. तो महोत्सव क्या होता है? सेलिब्रेशन. तो जब हम वन यानी जो हमारे फॉरेस्ट है उनको सेलिब्रेट करते हैं, दैट मेक्स इट अ वन महोत्सव. एंड व्हेन एंड हाउ इट इज डन, वी ऑल आर फेमिलियर. Van Mahotsav is an annual tree planting festival in India. It helps spread awareness amongst people about the harm caused by the cutting down of trees. This movement was initiated in the year 1950. एवरीडे लाइफ में हम कहीं बार भूल जाते हैं सब चीजें, राइट? तो एटलीस्ट ये फेस्टिवल्स हमें दोबारा से जगा देते हैं, याद करा देते हैं कि नो नो नो, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थिंग जिनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे ये पेड़ हैं, राइट? तो जैसा मैंने बोला, चाहे आप पोस्टर्स बनाते हैं, चाहे आप स्किट्स प्ले करते हैं, you always make sure you are planting different varieties of trees around you, or you can also gift people saplings so that they can put it in their garden. So Van Mahotsav is all about celebrating trees. Now let's move to the next question. Why does it matter if a species becomes extinct? यही बात जो पहले करी थी, नहीं तो हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व ही क्यों कर रहे हैं? एक छोटी सी भी स्पीशी का गायब होना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? हम सोच रहे हैं इतनी तो वैरायटी है, एक चली भी गई तो क्या हो गया? क्या फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? पड़ता है. जब आप फूड चेन्स और फूड वेब्स पढ़ते हो, और जैसा कि हमने चैप्टर डिस्कशन में भी किया था, आपको याद होगा मैंने आपको फूड चेन और फूड वेब का एक एग्जाम्पल दिया था, और वहां पे भी मैंने डिस्कस किया था आपको ये दिखाते हुए कि किस तरह से एक छोटे से रैबिट को भी अगर मैं उस फूड चेन से निकाल देती हूँ या उस फूड वेब से निकाल देती हूँ,
तो पूरे फूड वेब में सारे एनिमल्स अपनी अपनी जगह पे सफर करेंगे एंड एज अ रिजल्ट पूरा फूड वेब डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब जगह पे प्रॉब्लम्स और डिस्टर्बेंसेस आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि रैबिट जिसका खाना था उसको नहीं मिलेगा और जो रैबिट का खाना था उसका नंबर बढ़ता जाएगा एंड दिस विल प्रोपोगेट टू द अदर साइकिल्स ऑल्सो। सो दिस इज हाउ, चाहे एक स्पीशी बहुत ही छोटी है, उसका एक्सटिंक्शन इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। So when a species becomes extinct, with it the whole food web gets disturbed due to the interrelationship and interaction between organisms. If the dependent species shift its choice of food on another species, then there might be a competition for food with other species. Thus, in a nutshell, an extinct species affects the whole ecosystem. समझने वाली बात है, जब एक एग्जाम्पल लेकर बैठोगे आपको सब समझ आ जाएगा। जैसा मैंने रैबिट की बात की, जो उसे खा रहे हैं उनका क्या होगा, या तो उनको कुछ और देखना पड़ेगा खाने के लिए, और अगर वो किसी और पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, शिफ्ट करेंगे, तो उसके लिए कंपटीशन बहुत होगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले उस पर भी तो कोई सर्वाइव कर रहा होगा, राइट। सो दिस इज हाउ डिस्टर्बेंसेस आने शुरू होते हैं और एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म भी गायब होता है तो इट बिकम्स अ ट्रबल। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ आर इवन स्मॉल एनिमल्स इंपॉर्टेंट इन एन इकोसिस्टम? ये मैंने अभी आपको समझाया, छोटा सा भी कोई स्पीशी, चाहे वो गायब हो रहा है, चाहे वो स्पीशी बहुत ही छोटा है, गायब नहीं हुआ, बट वो एक छोटा सा स्पीशी है, जो उसकी वैल्यू अगर आपको देखनी है तो आपको फूड चेन्स और फूड वेब्स को समझना पड़ेगा। तब आपको रियलाइज होगा कि एक छोटा सा एनिमल भी सारों के साथ इंटरैक्टेड है, राइट। तो ये पिछला क्वेश्चन था जो इस फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है एंड द आंसर टू एक्सप्लेन दैट अगेन वुड बी सेम। यू हैव टू टेक द एग्जांपल ऑफ अ फूड चेन एंड अ फूड वेब एंड एक्सप्लेन द सेम आंसर जो आपने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था। So even very small animals form a part of the food chain and food web in an ecosystem. Hence, copy paste with the previous answer with the help of a food web and an example. All right, kids. Now let's take the next question. What is the effect of introduction of an exotic species to an ecosystem? Exotic. So what is the exotic species? Exotic species may affect the existence of local species either through predation or competition and can alter our natural environment and habitats and disrupt essential ecosystem functions. Yeah, because आपने जब exotic species के हमारे लेसन की वीडियो में आपने कितने सारे एग्जाम्पल्स पढ़े थे कि किस तरह से exotic species जो है वो all of a sudden मेहमान हैं, which are new to the environment, which are new to the habitat. So सब चीजें all of a sudden होती हैं, but जो existing species हैं वहाँ पे it becomes a trouble for them. Right? So this is how it affects the introduction to the ecosystem. So students, I hope it was a great learning session once again, and the exercise questions were really helpful to you in recalling the chapter and also from your examination point of view. I hope you have enjoyed it and learned a lot from it. Best of luck for your exams. We will see in the next video. Till then, bye-bye.